Hello, and this is Hariharan. Good evening, Saturday evening. It's going to be 5 o'clock, and I'm just going to start the Entertainer Show. And today it's tribute to Amitabh Bachchan. So, wow, it's going to be a great session. I hope so, and I can contribute something through the session. We're going to wait for a few minutes so that people receive the notifications that I'm live, and a few people might want to join in. So we will just wait for maybe a couple of minutes or so. It's still 4 minutes to 5. So it's going to be very interesting. So I hope today we can have a great session, and it's going to be a wonderful evening paying tribute to one of the great legends of Bollywood. So this is a continuing series in the Legends of Bollywood series, the Entertainer Show, and the show is all about learning, it's all about songs, and it's about stories from the world of Bollywood. So it's going to be a very, very cracking session. And I'm fully prepared because it's about my favorite star today. I've grown up with Amitabh Bachchan, the big B, the mega star, the superstar, the star of the millennium. So many tags go with that. So it's all going to be Amitabh Bachchan today for the next 30 to 45 minutes or so. And we just wait for a little bit more time. It's still 3 minutes to 5. And it's the fourth episode of the Entertainer Show. So my effort is try and be live on Saturdays at 5 o'clock. So if you can just put a hello or just confirm to me that my voice is coming through very clearly, you can just say yes in the comment section, so I will get an indication that you're able to hear me very clearly. Wait for a couple of more minutes before we go actually live with the show. You can look forward to some wonderful songs from the films of Amitabh Bachchan, and they're going to be romantic songs. So we're going to look at the other side of Bachchan, which is romance. So we're going to come to that. So if somebody can just put a hi in the comments and just let me know whether you can hear my voice clearly or not. So we will get started in some time, just 2 minutes to 5 even now. So if you could just say a hi, or you could say hello, yes, I can hear you clearly. So just help me out. So you can look forward to some wonderful songs from the films of Amitabh Bachchan. Right, so yeah, Venugopal ji, hi, loud and clear. Thank you so much. Wonderful to see you again. I can see you are such an amazing Bollywood and a music buff. Thank you, Venu, for being there. Yeah, I'm so excited because I look forward to these evenings. I started this 4 weeks back, and it just has caught on with me now. So I'm so excited, and I hope that I can gather more people as we go along and entertain people. Entertain people. That's the whole idea. So we sing, we entertain, we learn, and we grow. So a minute to go, and I'm going to start the blockbuster. It's the Amitabh Bachchan show. So I'll be so grateful if you could quickly share this on your timelines so that more people can join in, and you can just put in your comment. I'm sure there are a lot of Amitabh Bachchan fans in our country, or millions of them actually. So at least we can have some of those appreciating audience joining us today, because we're going to have a wonderful time together. So yeah, so just a few more seconds or so, and we're going to get started. Yeah, I think it's good to do what I normally do. It's the countdown. So let's start with the countdown. It's 5, it's 4, 3, 2, 1, and here we go. My name is Hariharan Iyer, the Entertainer, and I welcome you to the latest episode, fourth episode in the Entertainer Show in the Legends of Bollywood series. And today we're going to pay tribute to one of our absolute favorites,
Amitabh Bachchan. The more you talk about him, the more you hear about him, you want to know more about him, you want to still keep talking about him. And I'm going to share some life lessons, some stories, and some romantic songs, and a couple of renditions of poetry from his films, which is going to be, so it's going to be more of a romantic side of Bachchan today. Because the angry young man side is well known, so is the romantic side. Because I don't think there is anything much that people don't know about Amitabh Bachchan, but I'll still try to share maybe a couple of anecdotes here and there, which might just come as a welcome sign for all of you that okay, there is some value addition coming in from an area where I am not aware of. So let's begin with a tribute to Amitabh Bachchan with a wonderful song from the film Manzil, composition of R.D. Burman, and Amitabh playing a character there. And there's a very famous song from a Bachchan film. Rim jim gire savan, sulag sulag jaye man, भीगे जिस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंद रहा है किसी अजनबी से, महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंद रहा है किसी अजनबी से, हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन. So this is an iconic song from the film Manzil, starring Amitabh Bachchan, Mashmi Chatterjee in the lead roles, music by R.D. Burman, and it's a national anthem that we sing during the rains in Mumbai especially, and maybe across India also. बच्चन साहब कितना मायने रखते हैं हमारे लाइफ में. बच्चन साहब बहुत बड़ा मायने रखते हैं हमारे लाइफ में. मुझे याद है 1983 के कूली के एक्सीडेंट के बाद जब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे थे, तो हम लोग घर पे जब न्यूज़पेपर आता था हमारा बचपन में, तो हम पहली चीज ये देखते थे कि बच्चन साहब का हेल्थ बुलेटिन क्या है, व्हाट इज रिटर्न इन अमिताभ बच्चन हेल्थ बुलेटिन, बिफोर इवन वी सॉ द पॉलिटिकल हेडलाइंस और एनी अदर हेडलाइंस. You know, that's the kind of craze, and people are praying for him on the roads and across religions, and there was so much of well wishers, there were so many well wishers for him, and there was so much of prayers for Amitabh Bachchan. So Bachchan is the big B is a part of the Indian national consciousness. I don't think there is any conversation anywhere in India where somewhere it does not steer to the kind of work he's doing, and he's almost 78, 79, and look at the way he's going. God bless him with even more better health, longer life, and and he continues to regale us and inspire us. और भारत में तो एक तरीके का ये कहावत है, क्या तू अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है? अगर हमको किसी को गाली देनी है, हम उसको थोड़ा सा हम सरकास्टिकली उसके साथ बात करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं क्या खुद को अमिताभ बच्चन समझता है? अगर हमको किसी की तारीफ भी करनी है तो हम बोलते हैं ये हमारे अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन है, ये स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन है, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी का अमिताभ बच्चन है, ये सिंगिंग का अमिताभ बच्चन है, ये क्रिकेट का अमिताभ बच्चन है. So Amitabh Bachchan is not just a name. Amitabh Bachchan is a paradigm. He's a metaphor. He's a metaphor that stands for excellence. अगर किसी का भी इस देश में नाम हो अमिताभ, तो सबसे पहला वो सोचते हैं ये बच्चन तो नहीं है, right? So that's the kind of impact this absolutely amazing professional from Bollywood has had in our lives. और उनके जितने डायलॉग, सर हम जो ट्रेनर्स हैं, हमारे लिए तो बच्चन साहब भगवान है, क्योंकि उनका हर डायलॉग हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. जैसे एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, और मैं अपने ट्रेनर कम्युनिटी में जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ में बैठा था, बोला यार डू यू थिंक बच्चन डायलॉग्स आर रेलेवेंट टू आवर प्रोफेशन? फॉर एग्जाम्पल आज खुश तो बहुत होगे तुम.
तो जब हमको ट्रेनर्स को अच्छी फीडबैक मिलती है तो हम एक दूसरे को पूछ सकते हैं, आज खुश तो बहुत होगे तुम। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ट्रेनर लोग खड़े होते हैं वहीं से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होती है। तुम मेरा वहां इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारा यहां पर इंतजार कर रहा था, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। कई बार क्या होता है, मैं मजाक में कहता हूं कि ट्रेनर लोग ब्रेक के बाद पहले आ जाते हैं और अभी पार्टिसिपेंट्स के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो वो शायद ढूंढ रहे हैं कि ट्रेनर अंदर गया कि नहीं। जैसे ही अंदर आते हैं ट्रेनर बोलता है, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे लेकिन मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। तो ये एक दीवार की एक डायलॉग है जो मतलब इट्स सो अमेजिंग। मेरे पास माँ है तो वो है ही, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है। ये बिल्डिंग में अपनी माँ को तोहफे में देने जा रहा हूं, बाय गॉड। मतलब एक इतना अनरियलिस्टिक चीज को इतने कन्विक्शन के साथ बताना, ये बच्चन साहब की खूबी। वो मिरर के साथ बात करते हैं, वो क्रोकोडाइल के साथ बात कर, डॉल्फिन के साथ बात करते हैं, एक कॉकरोच के साथ बात करते हैं और ऐसा लग रहा है ये कोई एक ह्यूमन कैरेक्टर के साथ वो बात कर रहे हैं। दैट्स द लेवल ऑफ कन्विक्शन। तो बच्चन साहब के डायलॉग डिलीवरी से, उनके हैंड एक्सप्रेशन से, वो जिस तरीके से अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, सांस ऊपर लेते हैं, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है। तो ये एक लर्निंग है फॉर कम्युनिकेटर्स कि हम वॉइस मॉड्यूलेशन, वी कैन लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन फ्रॉम अमिताभ बच्चन। The way it's, see, he's got the gift of the baritone. We don't have, many of us don't have the gift, that kind of a gift. But it does not matter. We can still learn modulation. We can learn how to present ourselves. We can learn dialogue delivery. As a trainer, as a communicator, as a speaker, you can learn how to deliver. And I'm sure you would have watched some of Amitabh Bachchan's speeches or the way he recites his father's poetries or any other poetry, and it's absolutely amazing to see the delivery and the way he presents it, and it's such a great learning for all of us. So सबसे जो चीज को हम एसोसिएट करते हैं बच्चन साहब के साथ, अपार्ट फ्रॉम his personality, his hairstyle, his acting, his expressions, his dialogue delivery, is his voice. और मजे की बात यह, हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ने उनको एक बार नहीं 2 बार उनकी आवाज को रिजेक्ट किया था। लेकिन शायद ये बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, मैंने कहीं पे ये सुना था कि बच्चन साहब मेड हिज फर्स्ट प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम बॉलीवुड by being a voice artist. Just imagine, he was a voice artist for a Mrinal Sen film called Bhuvan Shom. He gave his voice to that film and he earned something like 300 rupees before he made his debut in South Hindustani. So that's his first income as a Bollywood actor, as a Bollywood personality. And then he came into acting. And this is for somebody whose voice was rejected by All India Radio. And today, you just switch on to YouTube, onto television, and you listen Amitabh Bachchan live on television in Kaun Banega Karodpati. You're fascinated by his voice. And it's also very interesting to know that it seems once he was desperately looking for work, like all Bollywood stars or strugglers in the beginning of their career. So he's looking for work, and it seems he was standing in a line for some small role in a film, and Shashi Kapoor noticed it. Shashi Kapoor was probably entering the studio and he noticed it, and he said, "What are you doing, Amit? Come here." And he pulled him out of the crowd and told Amitabh Bachchan, "You're not made for this. You're made for much bigger things." What a legend Shashi Kapoor was, that he could spot and recognize this kind of a talent. Now, what's important to understand here is Amitabh had a recommendation letter from Indira Gandhi because the two families were close, but he still had to go through his part of the struggle in the initial part of his career to get a break into Bollywood. So just having a recommendation और जस्ट हैविंग सम काइंड ऑफ सिफारिश, जो हम लोग हिंदी पिक्चर में बहुत यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे डायलॉग राइटर्स यूज़ करते हैं, सिफारिश सिर्फ होने से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अमिताभ का पहला नाम जो माँ बाप ने उनके सोचा था वो था इनकलाब, क्योंकि उस जमाने में 1940s में इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वाज एट इट्स पीक, and so they had named him Inkalab, and then eventually he was called as Amitabh. Amit means जो कभी नहीं मिट सकता.
बच्चन साहब की पंक्चुअलिटी, बच्चन साहब का डिसिप्लिन, बच्चन साहब का हार्डवर्क लेजेंडरी है। और ये बातें, इसके ऊपर एक, देयर आर कपल ऑफ नाइस स्टोरीज which I will share with you just a little later. Let's move to back to Bachchan Saab's voice now. Now I'm going to do a very poor job of reciting couple of his iconic poetries in two films, Silsila and Kabhi Kabhi, but I'm just going to do my best because I wanted to relive those absolutely magical Bachchan moments when it comes to reciting these couple of uh, poetries from Silsila and Kabhi Kabhi respectively. So here I go, and just bear with me. You have guessed it, written by Javed Akhtar साहब. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते is a song of which this is a part. It's of course a much longer version, but interestingly, Javed Akhtar had written a nazam, and this is part of that nazam which you can actually watch on YouTube. Javed Akhtar reciting his full nazam on मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. So it is part of an overall nazam that he had written, जिसको इस पिक्चर के लिए कुछ पैराग्राफ्स को लिया गया, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. And what a phenomenal rendition by Amitabh Bachchan. So I think एक चीज होता है कि लिरिसिस्ट अपने शब्दों को लिखे, म्यूजिक डायरेक्टर अपना म्यूजिक दे, डायरेक्टर अपना काम करे, लेकिन जब तक वो एक्टर उस स्क्रिप्ट को ओन नहीं करता, as long as you don't, if you don't own the script, then you really can't deliver it as if you have written it. So I remember when Silsila was released, and this music album came out, and Main Aur Meri Tanhai became such a rage across the country. There was this voice of Amitabh Bachchan which was reciting Main Aur Meri Tanhai. It's legendary, absolutely legendary. It's not only to have the gift of the voice, it's also how you express yourself. That's phenomenal. अब हम चलते हैं साहिर लुधियानवी के शब्दों को रिसाइट करते हैं कभी कभी फिल्म से. इतना डेप्थ है इस नज़म में और इस लिरिक्स में जो साहिर लुधियानवी ने लिखा है. इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल द वे बच्चन साहब हैज रिसाइटेड इट. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की सिहाई जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका. और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं. इतना दर्द और कितनी खूबसूरती से इसको लिखा गया है साहिर लुधियानवी के द्वारा, और कितनी खूबसूरती से इसको प्रेजेंट किया है अमिताभ बच्चन. सो बच्चन साहब लेजेंडरी फॉर हिज हार्डवर्क, लेजेंडरी फॉर हिज डेडिकेशन, लेजेंडरी फॉर हिज अमेजिंग प्रोफेशनलिज्म. एक बार तो ऐसा मैंने सुना है कि डायरेक्टर ने बोला अगर मैं तुमको 8 बजे का समय दूं तो तुम 7 बजे नहीं पहुंचना, क्योंकि हम खुद भी 8 बजे नहीं पहुंचते टाइम पे. तो this kind of punctuality, professionalism that Amitabh Bachchan had, we all of us can learn so much from that. एक बार तो ये भी सुनने में आया कि वो स्टूडियो की तरफ जा रहे थे, गाड़ी ट्रैफिक में अटक गई थी और उन्होंने घड़ी देखा कि बहुत
कम समय बचा है, उनको टाइम पर पहुंचना है शूटिंग पे, तो उन्होंने ड्राइवर को बोला तुम गाड़ी लाना। वो गाड़ी से उतरे और भागकर 10 मिनट तक करीब करीब भागकर अपने स्टूडियो तक पहुंचे समय पर पहुंचने के लिए। दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन इन एन इंडस्ट्री वेयर स्टार्स टिपिकली कम लेट। अब बीच में मैं एक बहुत दूसरे एक स्टार को मैं सुन रहा था एंड शी वाज सेइंग दैट ओनली टू पीपल रियली केम ऑन टाइम, दैट वाज अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर। So star tantrums, star delays, many heroes turning up late, heroines waiting for the heroes to come, but with Bachchan you never had that problem. The problem was he used to probably come before the unit, so that's the kind of dedication that Amitabh Bachchan had. अब चलिए let's explore the romantic side of Amitabh Bachchan. ये पुलिस स्टेशन है तेरे बाप का घर नहीं, जंजीर की जो डायलॉग है वहां से शुरू हुई अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली जर्नी। और ऐसे बहुत सारे फिल्मों में उनके ऐसे बहुत सारे ऐसे जबरदस्त डायलॉग्स हैं, और एक एंग्री यंग मैन का रोल उन्होंने प्ले किया है, जैसे नमक हराम में प्ले किया है, या दीवार में प्ले किया, या त्रिशूल में प्ले किया है। लेकिन देयर इज वन, इवन ड्यूरिंग हिज स्पीक, देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ बच्चन्स करियर वेयर देयर वाज अ टच of, there was this romantic side to him, which also he displayed so beautifully in films like Kabhi Kabhi, for example, or Silsila, or Satya Pe Satta, or even Yarana. तो याराना का आइकॉनिक सॉन्ग, अब मैं कुछ रोमांटिक नंबर्स आप लोगों के लिए गाना चाहूंगा अमिताभ बच्चन के फिल्मों से। Kishore Kumar became the voice of Amitabh Bachchan, though Rafi did contribute a little bit here and there to a couple of some classics also. I'll try and see if I can sing them also for you. So, but let's start with this absolutely beautiful song from Yarana, जो सही में हमारे दिल को बहुत छूता है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये गाने की खासियत है, और वो है जिस तरीके से किशोर कुमार ने इस गाने को गाया है। किशोर कुमार अगेन अ लिटिल बिट ऑफ अ बैरिटोन वॉइस, अ डीप वॉइस, अ वॉइस विद डेप्थ, लेकिन उन्होंने इस पूरे गाने को दबाकर गाया, अपनी आवाज को दबाया है। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, जी तेरे होठों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। See, it's difficult song. It's a very difficult song because you cannot sing it in your natural range. But Kishore has done such a beautiful job of singing this absolutely amazing song from Yarana. लेकिन अब मैं दूसरा जो गाना मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, इसमें उन्होंने अपना पूरा रेंज यूज किया है, और ये भी अमिताभ बच्चन का एक रोमांटिक सॉन्ग्स में एक आइकॉन्स के लिस्ट में ये गाना आता है। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। और एक गाना है जहां पर किशोर ने अपना पूरा रेंज यूज किया है, और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ अमिताभ बच्चन फ्रॉम द फिल्म बरसात की एक रात। अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने प्यार के सपने सच हुए, होठ
होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया के मन मीत मिल गए, ओ अपने प्यार के वो सपने सच हुए। एक इस गाने के अंदर एक लाइन में किशोर का जो एक रैपिड प्रेजेंटेशन है, एक मॉड्यूलेशन है, वो भी हम उसकी भी खूबी हमको मिलती है। बिना देखे तुम देखो मेरी आंखों से अपने प्यार के वो सपने सच हुए। किशोर और अमिताभ बच्चन का जो कॉम्बिनेशन है, इतने इमॉर्टल सॉन्ग्स हैं। और ऋषि कपूर के बारे में ये कहा जाता था कि ही हैड द बेस्ट लिप सिंकिंग इन द इंडस्ट्री। और ऋषि कपूर वो खुद गाते थे जब वो एक्टिंग करते थे, उस लिप सिंकिंग करते थे, प्लेबैक सिंगिंग जब वो एक्टिंग करते थे, तो वो ही यूज टू सिंग इट हिमसेल्फ। आई मीन ही वाज सो गुड, बट आई थिंक बच्चन वाज आल्सो वेरी गुड एट लिप सिंकिंग। एंड यू कैन वॉच दिस सॉन्ग, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, एक सिर्फ एक एक्सप्रेशन पर, वो भाव पर उन्होंने खेला है उस पूरे गाने के अंदर। एक ऑडिटोरियम में वो गा रहे हैं, उनका जो इंटेंसिटी है और वो एक रोमांटिक लव जो है उनके राखी के लिए, जो जिनको वो पा नहीं पाते उस पिक्चर में। सो ही इज अ लूजर इन लव इन दैट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। बट जो खूबसूरती से लिप सिंकिंग किया है, एक्टिंग किया उस गाने के अंदर, और किशोर कुमार ने गाया है, क्या कहना। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, आंखों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक फास्ट रोमांटिक नंबर है फ्रॉम द फिल्म बेमिसाल। और अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी के फेवरेट थे, उन्होंने काफी फिल्म्स किया ऋषिदा के साथ, जैसे आनंद, नमक हराम, बेमिसाल। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर तेरे दिल को थाम लूंगा, तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको बताऊंगा मैं, लेकिन जुबां के बदले आंखों से काम लूंगा, मेरे कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। सो मेनी, as I said, amazing immortal songs, कॉम्बिनेशन ऑफ किशोर कुमार एंड अमिताभ बच्चन। और किशोर दा की खासियत थी, जो मैंने रफ़ी साहब और किशोर शाह दा के शो के बारे में भी, जिस दौरान मैंने वो शो किया था तभी भी मैंने बताया था, इनकी खासियत थी कि
वो कैरेक्टर के अंदर घुसकर गाते थे। जब भी अमिताभ को आप सुने, आपको लगेगा अब कि अमिताभ ही गा रहे हैं, किशोर नहीं गा रहे हैं। उस तरीके का वो, जैसे लिप सिंकिंग इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सिंगर के लिए भी कैरेक्टर के अंदर घुसकर गाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो गोल्डन एरा में ये लोग हमारे टॉप सिंगर्स इसको आसानी से कर भी लेते थे। किशोर दा ने बहुत सारे गाने गाए अमिताभ बच्चन के लिए, लेकिन कुछ रफी के भी गाने हैं जो अमिताभ के ऊपर पिक्चराइज किए गए। और एक गाना तो रफी और अमिताभ ने खुद साथ में गाया, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पांव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। ये और रफी साहब और अमिताभ ने डुएट गाया फ्रॉम द फिल्म नसीब। एक गाना जो रोमांटिक सिचुएशन, थोड़ा रोमांटिक है, और यहाँ पर भी एक लूजर वाला भाव है इस गाने के अंदर, लेकिन फ्रॉम द फिल्म दोस्ताना। लेकिन ये गाना पिक्चराइज किया गया अमिताभ के ऊपर, लेकिन गाया है रफी साहब ने। इट्स अ क्लासिक। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। सो शो अब थोड़ा सा अगले 5-10 मिनट के अंदर हम इस शो को को का अंत करेंगे, लेकिन एक और किस्सा याद आता है। बच्चन साहब ने कहीं पे बताया था, कहीं पे सुना था, कहीं पे पढ़ा था कि जब वो छोटे थे और एक बार उनके बाबूजी, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े कवि थे, हरिवंश राय बच्चन, एक बार वो देरी से घर आए, तो बच्चन साहब ने उनसे पूछा, रात के करीब 2 या 3 बजे होंगे शायद, कोई मुशायरे के बाद आए होंगे। तो अमिताभ ने उनसे पूछा कि बाबूजी आज बहुत देरी हो गई आपको। तो उन्होंने कहा, बेटा पैसे बड़ी मुश्किल से मिलता है, पैसे बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से बनता है। फिर एक दौर आया, अमिताभ बच्चन खुद बड़े सुपरस्टार बने, दिन में 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, और एक दिन वो रात को बहुत देरी से आए। तो उनके बाबूजी ने उनसे पूछा कि बेटा आज बहुत देरी हो गई तुमको घर आने में। तो अमिताभ ने कहा, बाबूजी पैसे बड़े मुश्किल से मिलता है। तो ये एक दिलचस्प कहानी है, और अमिताभ बच्चन ये हर बार दोहराते हैं कि उनके पिताजी ने उनको एक सीख दी थी कि मन का हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा। मन का हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा। तो ऐसे जब भी आप अमिताभ बच्चन को केबीसी में सुनते हैं या कभी कोई उनका भाषण सुनते हैं, तो आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुनने को मिलता है। एंड एज ए कम्युनिकेटर, एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर, you can also learn the art of storytelling from this legend called अमिताभ बच्चन। और उनकी जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट है, he was voted as the youth icon at the start of this millennium, I think by MTV Awards, if I remember correctly. It's amazing, isn't it? For a senior citizen like him, a so-called senior citizen like him. And today also, the youngest of people know about the work of Amitabh Bachchan and the worth of Amitabh Bachchan, and the way he has reinvented himself from time to time, which is so difficult, and to stay relevant in this kind of a ruthless industry for 50 long years is incredible. क्या हम अपने फील्ड में इस तरीके का लेजेंड बन सकते हैं? क्या हम भी अपने फील्ड में 50 साल अपने आप को इस फील्ड, हम जिस फील्ड में हैं उस प्रोफेशन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं? तो हम भी क्या अपने जीवन में एक आइकॉन बन सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में कोई लेगेसी छोड़ सकते हैं बच्चन साहब की? और कितने उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल भी आए, हेल्थ रिलेटेड तो चलता ही रहता है, उसके बावजूद आज 78 साल के इस लेजेंड को लोग जब काम करते देखते हैं तो बड़े प्रेरित होते हैं। ही वर्क्स 15 to 16 आवर्स एवरी डे, कभी कोई शूट, कभी कोई मॉडलिंग, कभी कुछ रिकॉर्डिंग, अमेजिंग, सम पब्लिक फंक्शन, वेरी एक्टिव on social media, is a great writer, you should read some of his blogs, और वेरी हाईली कॉम्पिटेंट स्किल्ड पर्सन। ये हमको बच्चन साहब के जीवन से सीखने को मिलता है। तो
चलिए दो और गाने मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे फेवरेट्स हैं, तो बहुत ही दिल को छू लेते हैं दोनों गाने। और वो दूसरा जो गाना है उसका मैं सैड वर्जन भी सुनाऊंगा और हैप्पी वर्जन भी सुनाऊंगा, एंड ऑफ कोर्स वी विल एंड ऑन अ हैप्पी नोट एंड नॉट ऑन अ सैड नोट। तो अभिमान पिक्चर बनी थी, जया बादुरी वॉज हिज को स्टार, म्यूजिक बाय एस डी बर्मन, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तुम चल है तेरे नैनम, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से, तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से, जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन, नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। एस डी बर्मन का बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन, a very different kind of a romantic angry young man combination role of Amitabh Bachchan, where he's jealous of his wife's success, then he accepts that she's a much better singer than him, and he comes around, and what a beautiful end to this movie through this song called Tere Mere Milan Ki Ye Rehna, composed by S.D. Burman Saab. What an absolutely amazing composition from Abhiman. So अमिताभ के बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर यू कैन सी द रोमांटिक टच इन हिम, और सही मायने में इतने लाइफ के चैलेंजेस आने के बावजूद वो मुकद्दर के सिकंदर साबित हुए। तो हम इस शो का अंत भी हम मुकद्दर का सिकंदर के गाने के साथ करेंगे, लेकिन इसमें दो वर्जन है, एक हैप्पी वर्जन है और एक सैड वर्जन है जो फिल्म के अंत में आता है। जो हैप्पी वर्जन, जो पूरा गाना है वो किशोर कुमार ने गाया है, लेकिन कुछ लाइंस जब when Amitabh is acting out the death scene in मुकद्दर का सिकंदर towards the end of the film, रफी साहब ने अपने डिवाइन वॉइस में कुछ लाइंस गाए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन टुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। So that's the end on a happy note, and I really hope कि आप भी अपने जीवन में मुकद्दर का सिकंदर बने,
बच्चन साहब के इस शो से मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सका हूं. आई बीन एबल टू शेयर some ideas with you, and I've been able to entertain you, and I have also been able to entertain you. आज था ये 4th एपिसोड इन द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज, जहां पर हमने एक ट्रिब्यूट दिया टू द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन. बहुत कुछ है हमको हमारे उनके जीवन से सीखने के लिए, उनके काम करने के तरीके से सीखने के लिए. And please do share this video to as many people as you can, so that more people can benefit from the entertainment as well as the entertainment, right? So रहा नहीं जा रहा, एक और गाना तो बनता है शो के आखिर में. तेरे जैसा यार कहाँ, क्योंकि बच्चन साहब सबके दोस्त हैं. कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना. मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना. So ladies and gentlemen, thank you very much once again and for being on the Entertainer Show tribute to Amitabh Bachchan, and please do join me very soon for the next episode in one more Entertainer Show, where I will showcase one more legend in the legends of Bollywood series. Thank you very much. Namaste, and do take good care of yourself.